two body center force problem ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ consider ਕੀਤਾ ਹੈ two bodies have mass m1 and m2 and the mass of the one body have the position vector r1 from the origin O and m2 mass have position vector r2 from origin O and these two body make the system and that two body system and that system at the center of mass. The center of mass position vector is called the r vector. So the difference between the two body is written as r2 position minus r1 position. If calculate the r1 we write as the r2 minus r. If we write the r2 r1 plus r. So टू बॉडी सेंटर प्रॉब्लम फोर्स प्रॉब्लम ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਂਗਰਾਂਜੀਅਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਐਸੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈਂਗਰਾਂਜੀਅਨ ਕਿਹਦੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ तो ਇੱਥੇ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਆ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ तो फिर ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮਾਈਨਸ vr ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ आर ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਗਾ तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन वेक्टर ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ r1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ तो ਰੀਰਾਈਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ r2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ r2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ कैपिटल R minus m1 r m1 plus m2 आ जाएगी सिमिलरली r1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ और जे तुसी इन्हां दोनों का डेरिवेटिव लेंदे हो इस इक्वेशन का ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ तो इन्हां दोनों इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ m मास तो कांस्टेंट है तो ये वेरिएबल है तो सो इन्हां ਦਾ डेरिवेशन होएगा तो इन्हां दोनों ਨੂੰ ਆਪਾਂ r1 ਦਾ डेरिवेटिव r2 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ तो ਅਸੀਂ ਰੀਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਂਗਰਾਂਜੀਅਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ तो ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰਕੇ तो ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ तो इस इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ r जो है वो पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का तो सेंटर ऑफ मास जे तो कांस्टेंट है या रेस्ट ਵਿੱਚ है ਜਾਂ ਫਿਰ वो रेस्ट कांस्टेंट तो फिर इसका डेरिवेटिव 0 होएगा तो इस इक्वेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗਰਾਂਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ तो ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਹ ਵਾਲੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਿਡਿਊਸ ਮਾਸ ਹੈਗਾ तो ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਡਿਊਸ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਟੂ ਬੋਡੀ ਮਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ तो इस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੂ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਿਡਿਊਸ ਮਾਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ तो ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਗਰਾਂਜੀਅਨ ਹੈ तो लैग्रांजियन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਇੱਕ r ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਥੀਟਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਮਾਨ पोटेंशियल एनर्जी लैग्रांजियन ਹੁੰਦਾ है तो किनेटिक एनर्जी को आप ऐसे राइट कर सकते हो तो ये किनेटिक एनर्जी होगा ये वेलोसिटी का स्केयर ऑफ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट से ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ तो ऐसे राइट ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ r ਡਾਟ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ r ਸਕੁਅਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਥੀਟਾ ਡਾਟ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਥੀਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ सो लैग्रांजियन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਥੀਟਾ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਲੈਗਰਾਂਜੀਅਨ ਥੀਟਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਗਰਾਂਜੀਅਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦਾ ਥੀਟਾ ਤਾਂ 0 ਮਿਲੇਗਾ तो ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈਗਾ तो ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਮੋਮੈਂਟਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਥੀਟਾ ਡਾਟ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ तो साढ़े को एक क्वेश्चन आ जाएगा ऐसी जनरलाइज तो फिर आप इस क्वेश्चन तो ऐसे राइट करोगे तो फिर आगे m r स्क्वायर थीटा डॉट आ जाएगा बाकी सारी टर्मां जीरो हो जाएंगी तो इक्वेशन ऑफ मोशन ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗਰਾਂਜੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ d/dt ਕਰਲੀ l/ ਕਰਲੀ ਥੀਟਾ ਡਾਟ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ तो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗਰਾਂਜੀਅਨ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜੇ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਲੈਂਗਰਾਂਜੀਅਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ वो मैं राइट करता पे for थीटा कोऑर्डिनेट तो थीटा कोऑर्डिनेट वास्ते लिखांगे तो आप ऐसे राइट करोगे हुन तुसी करना की हैगा ये गिवन है ਇਹਦਾ डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू भैया ठीक करली l बाय करली थीटा करोगे तो वो तो 0 मिलेगा तो करली थीटा डॉट करोगे तो ये टर्म मिलेगा ਤੁਹਾਨੂੰ तो 1/2m तो r स्क्वायर तो आएगा तो 2 थीटा डॉट आ जाएगा तो 2 ना 2 कैंसिल आउट हो जाएगा
तो जो तुम इतने सब्सटीट्यूट करोगे तो ऐसे राइट कर सकते हो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਸੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ dy/dt ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟਰਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। तो इस टर्म ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟਰਮ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। तो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ प्लेन सेंट्रल फोर्स के इफेक्ट ਵਿੱਚ ਜੇ बॉडी रोटेशन करेगी तो ਉਹਦਾ एंगुलर मोमेंटम क्या होएगा, कांस्टेंट होएगा। और हियर मैं इस इक्वेशन में m ਇੱਥੇ कांस्टेंट है, मैं इस इक्वेशन में इतना 1/2 ਵਿੱਚ राइट करके ऐसे भी लिख सकदा। तो ਜੇ मैं ਇੱਥੇ 1/2 राइट करदा ਇੱਥੇ तो आप जे ਹੁਣ मतलब 1/2 इज द कांस्टेंट। और आप इस इक्वेशन में जब चेंज देखोगे तो h आएगा। तो ये dy/dt ਦਾ तो h आना पे तो h ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ एरियल वेलोसिटी ਨੂੰ डिनोट कर सकते हैं। तो एरियल वेलोसिटी में ये फिगर तो भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो एरियल वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इस ज्योमेट्री का एरिया कितना होएगा, तो फिगर तो आपको पता है कि आप ऐसे राइट कर सकते हो कि एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। ठीक है, तो ये आप कंसिडर कर लो, ये बेस है, ठीक है, ये भी आर, तो ये हाइट है, तो आप राइट करोगे आर डी थीटा। तो इस इक्वेशन को तुम ऐसा राइट कर दो सेम। तो ये एरिया वेलोसिटी आ गया। तो लैग्रांजियन इक्वेशन जे तुसी आर कोऑर्डिनेट ते लिखना चाहते हो तो फिर तुसी आर इक्वेशन से जे थीटा डॉट जे थीटा लिखा है, तो लैग्रांजियन इक्वेशन आप आर डॉट के लिए फाइंड कर लो। आर डॉट के लिए फाइंड करोगे तो आप ऐसे राइट कर दोगे। अगेन तुसी फिर यही इक्वेशन नु जेड़ा लैग्रांजियन इक्वेशन है ਇਹਦਾ पहले आर डॉट फाइंड करो, फिर तुसी ਜਿਹੜਾ ਕਰਲੀ ਬਾਈ करली एल बाई करली आर, तो फिर करली एल बाई करली आर डॉट फाइंड करो। तो फिर इतने सब्स्टिट्यूट कर दो तो इक्वेशन मेक होएगी। और ये जस्ट मैं आ वाली इक्वेशन ਜਿਹੜੀ है मैं जस्ट इतों लिखी है। जो तुम ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ हो तो करली बी बाई करली आर आंदा ਤੇ ਮੈਨੂੰ एफ आर लिख दोगे है। और जे थीटा डॉट द स्क्वायर है ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ कि थीटा डॉट स्क्वायर ਇੱਥੇ थीटा ਦੀ वैल्यू आपको पता है तो वैल्यू कर दी है जे वन एम आर द स्क्वायर। तो आप थीटा डॉट द स्क्वायर करोगे जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर स्क्वायर 4 आएगा, तो वो इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो एम आर ना करके आ जाएगा, तो ये सिम कैंसिल करेंगे आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा रीराइट करोगे तो तुसी इस तरह भी लिख सकते हो। डेरिवेटिव करोगे तो वो सेम टर्म आएगा, माइनस जे स्क्वायर ओवर एम आर क्यूब। तो फिर इस इक्वेशन को थोड़ा उधर लेके आप यदि वैल्यू करली बाई करली आर होनी है, तो आपने क्या किया, इथों माइनस कॉमन कर लिया, करली बाई करली आर कॉमन कर लिया, तो इक्वेशन में ऐसे राइट कर दिता। तो एम आर द डबल डेरिवेटिव में आर डॉट ना मल्टीप्लाई किया, तो बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन इसका मेक होगी, इसका मेक होगी। तो इसको आप आर डॉट में डी आर बाई डी टी लिखते हो तो डी बाई डी टी इधर आ जाएगा। और आर डी करली आर बाई करली आर कैंसिल हो गया। आर टर्म ऐसे लिख दी तो डी बाई डी टी को कॉमन कर लिया, तो डी बाई डी टी का डेरिवेटिव 0 आंदा पे जिस टर्म का, तो ये टर्म कांस्टेंट होएगी। थीटा जे इसके जे की वैल्यू है इससे फिल करोगे काइनेटिक एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी होगी, बस सम क्या होएगा इक्वल टू कांस्टेंट होएगा। थीटा वाली इक्वेशन तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो रहा है, तो आर कोऑर्डिनेट लैग्रांजियन इक्वेशन तो एनर्जी कांस्टेंट हो रहा है।